Hello everyone. In the last video, we started the topic square of opposition and we did three relations: contrary relationship, subcontrary relationship, contradictory relationship. Today, we will do subaltern और subalternation relationship, जिसे हिंदी में उपाश्रित संबंध कहते हैं. Subaltern relationship. In this relationship, the truth of first, the superaltern, implies the truth of second, the subaltern, but not conversely. अब देखिए, यहाँ पे subaltern relationship A और I के बीच है. Similarly, E and O के बीच. अब हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, सुपरऑल्टर्न एंड सबऑल्टर्न. सो ए यहाँ पे सुपरऑल्टर्न है एंड आई सबऑल्टर्न. अब देखो, सुपर है तो इसके सुपर वर्ड से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि जो रूल कर रहा है या जो सुप्रीम है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं आई से ऊपर है. अब यहाँ पे सुपर का क्या मतलब है? सुपर का ये मतलब है कि ये जो आई है ये इसमें इंक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल, A and I. So, A proposition, all papers are white, and some I proposition, some papers are white. So, if we are saying all papers are white, so it is understood that some paper are white, it is already included in this all, the whole. अगर हम ऑल की बात कर रहे हैं तो सम ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाएगा. सो इफ ए इज ट्रू देन आई मस्ट बी ट्रू. दिस इज द रिलेशन ऑफ subaltern. There is subaltern relationship between A and I in preposition as well as E and O. तो similar relation यहाँ भी होगा. If E is true, then O must be true. अब देखिए, अब अगर हम कहते हैं, अगर हम उल्टा चलते हैं, अगर हम यहां से चलते हैं, अगर हम कहते हैं I is true, क्योंकि हम बोल रहे हैं some papers are white, तो हम यहाँ A को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ I we cannot justify the A. We cannot say some papers are white. So, on the basis of this I proposition, I conclude all paper are white. It is not possible. So, the truth value of A here in this case is undetermined. क्योंकि I अगर true है तो A false भी हो सकता है और true भी हो सकता है. There are two possibilities. So, same case जो हमने A और I के लिए समझा, वही सेम केस हम E और O के लिए भी समझते हैं. ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूं सिर्फ ट्रुथ के बारे में कि इफ A is true, then I is true. I is true, then A is undetermined, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. U means undetermined, because here the value of the proposition is not defined as true or false, क्योंकि हम I के बेस पे A को कंक्लूड नहीं कर सकते. So that's why if I is true, then A is undetermined.
mind. Similarly, if E is true, then O is true, and O is true, then E will be undetermined. So this was the case in the context of truth, जब हम ट्रू की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम फॉल्स की बात कर रहे हैं तो फॉल्सिटी का केस क्या है? फॉल्सिटी के केस में सबऑल्टर्न और सुपरऑल्टर्न का रिलेशन आप यूं समझिए कि पलट जाता है. फॉल्सिटी के केस में हम ये बोलते हैं कि इफ I इज फॉल्स, ये हो जाएगा, फिर ये रिलेशन कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा. तो इफ I इज फॉल्स, फिर हम ऐसे चलेंगे, A must be false. Similarly, O is false, then E must be false. ये रहा ये दो कॉम्बिनेशन कि if I is false, A is false. If O is false, then E is false. But if A is false, then I will be determined, undetermined. If E is false, then O will be undetermined. तो उल्टा हो जाता है. So there is two cases actually. One is in the context of truth and second in the context of falsity. तो truth के केस में A and E सुपर ऑल्टर्न की तरह काम करते हैं. So the truth of universal proposition imply the truth of particular proposition, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रपोजिशन है A and E. और यूनिवर्सली अगर हम किसी को ट्रू कह रहे हैं तो पर्टिकुलर अपने आप ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो उसी में इंक्लूडेड है. लेकिन अगर फॉल्स का केस है, सो द फॉल्सिटी ऑफ यूनिवर्सल प्रपोजिशन does not carry downwards to the respective particular propositions. तो falsity में हम उल्टा चलते हैं ऐसे. So if particular propositions false, तो ये भी false होंगी. ये दो केस आपको याद रखने पड़ेंगे. ये इस इंटरचेंज हो जाता है, सुपर ऑल्टर्न की तरह काम करता है. तो ट्रुथ वाले केस में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एंड फॉल्स वाले केस में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. समझने के दो तीन तरीके हैं. आप दो केस के फॉर्म में समझ सकते हैं, आप एरो के फॉर्म में समझ सकते हैं. इतना भी मुश्किल नहीं है इसको समझना. तो ये रिलेशन थे. ये फर्स्ट केस था जहां हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं. ये सेकंड केस है जहां हम फॉल्सिटी की बात कर रहे हैं. सो ट्रुथ में एक बार मैं फिर से शॉर्ट में इसको समझाती हूँ. ट्रुथ के केस में A एंड E दोनों सुपर ऑल्टर्न होते हैं. यानी अगर इफ A एंड E इज ट्रू, I एंड O ऑटोमेटिकली विल बी ट्रू रिस्पेक्टिवली. वो A, क्योंकि हम यूनिवर्सल प्रपोजिशंस हैं, यूनिवर्सल प्रपोजिशन है तो पर्टिकुलर डेफिनेटली अपने आप में सही होंगी. और ये हो गया ट्रुथ का केस. ये होते हैं फॉल्सिटी के लिए सुपर ऑल्टर्न की तरह काम करते हैं. होते नहीं है लेकिन हम समझने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि आप कह सकते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इफ I is false, पर्टिकुलर प्रपोजिशंस अगर फॉल्स है तो वो यूनिवर्सल प्रपोजिशन की फॉल्सिटी भी दिखाती हैं. सो दिस वाज द सबऑल्टर्न रिलेशनशिप. अब हम देखते हैं एक एक्सरसाइज जिससे आपको समझ में आए कि सम्स
कैसे करना है। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा, फाइंड कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सबऑल्टर्न ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। दिस इज द क्वेश्चन 1। इतना आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सो रिमेंबर द स्क्वायर ऑपोजिशन ए ई आई ओ। सो आप देख रहे हैं कि एक प्रपोजिशन से 3 रिलेशन निकलते हैं। दिस इज ए प्रपोजिशन, इससे एक रिलेशन ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है एंड एक ये निकल रहा है। सो दिस वन इज कॉन्ट्रेरी, तो हमने यहां पे लिखा कॉन्ट्रेरी। अब ई प्रपोजिशन में चेंज करना है। रिमेंबर द कंडीशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल बी सेम। सो नो वोटर्स आर सिटीजन्स, क्योंकि ई प्रपोजिशन का क्वांटिफायर नो होता है। ये आपने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में पढ़ लिया है। देन सेकेंड रिलेशनशिप ओ, कॉन्ट्रेडिक्टरी, तो सम वोटर्स आर नॉट सिटीजन्स। Then third relationship is subaltern. Subaltern, some voters are citizens. ये हो गया I प्रपोजिशन। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नो फिलोसफर्स आर इंडियन, दिस इज ई प्रपोजिशन। सो ई से भी 3 रिलेशन निकलेंगे। एक इधर ए, कॉन्ट्रेरी, ऑल फिलोसफर्स आर इंडियन। देन कॉन्ट्राडिक्टरी आई, some philosophers are Indian, then subaltern O, ये हो गया A, ये हो गया I, ये हो गया O। some philosophers are not Indian। ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है और 4 मार्क्स का भी आता है। 3 मार्क्स का आता है, इट मीन्स आपको ये 3 रिलेशन शो करने हैं। आप नाम के साथ ही करेंगे, बिना नाम के करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटर है आप पहले रिलेशन का नाम लिखें, उसके बाद उसको चेंज करें। अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो कभी कभी हमें इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है या फिर लॉजिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लॉजिकल फॉर्म। तो लॉजिकल फॉर्म, ये दिस प्रपोजिशन इज ऑलरेडी इन लॉजिकल फॉर्म, वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, और नहीं बताया है तो आने वाली वीडियो में भी एक बार और ये डिस्क्राइब होगा कि पहले हमें हर प्रपोजिशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, देन उसके बाद हम आगे करते हैं। तो ये था एक फॉर्म एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1। ये बहुत इजी है, आप सब बहुत आराम से कर लेंगे। एक्सरसाइज और भी एग्जाम्पल है बाय द वे। एक एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं और अगर मैं आपको बताऊं, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं सम बॉयज आर नॉन गुड, नॉन गुड। ठीक है, हमने एक नॉन वर्ड लगाया, इट मीन्स ये है अपोजिट ऑफ द गुड। ठीक है, लॉजिक में ये वर्ड बहुत यूज होता है जब भी हमें अपोजिट वर्ड्स शो करने होते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट ओ प्रपोजिशन। ये नॉन लगा है, नॉन है, नॉट नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन नॉन and not। दिस इज आई प्रपोजिशन क्योंकि ये पूरा प्रेडिकेट है, नॉन गुड। अब अगर मैं इसे लिखती हूं सम बॉयज आर नॉट नॉन गुड, दैट विल बी ओ प्रपोजिशन क्योंकि यहां पे हमारा नॉट है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन 2 टर्म्स, नॉन एंड नॉट। अब अगर हमारा ये सम है, ये आई प्रपोजिशन है और इससे हमें रिलेशन निकालने हैं, तो आई से कॉन्ट्रेरी नहीं निकलेगा, सब कॉन्ट्रेरी निकलेगा। सब कॉन्ट्रेरी होगा
O preposition, that O preposition. Some boys are not non-good. Contradictory होगा E preposition. So no boys are non-good. इसके बाद आएगा subaltern. Subaltern, it means A preposition. So all boys are non-good. So मेरा पर्पस सिर्फ इतना है ये एग्जाम्पल बताने का. डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स. अगर नॉन के साथ आपको कोई वर्ड लगा है वो पूरा एक वर्ड है, या तो सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट. किसी भी टर्म में आपको नॉन के साथ वर्ड मिल सकता है. सो उसे नॉट से कंफ्यूज मत कीजिएगा. अब आती है सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता है. सम कैट्स आर नॉट रेड ईटर्स. दिस इज ओ प्रपोजिशन. इज गिवन फॉल्स. ये हमको फॉल्स दी हुई है. देन व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द फॉलोइंग प्रपोजिशन. ये आपके सम्स हैं 3. अब हम देखें अगेन. ये बहुत जल्दी मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँगी कि जब भी आप स्क्वायर और प्रपोजिशन के सम सॉल्व करें तो साइड में जल्दी से आप एक ऐसा स्क्वायर डायग्राम बना लें जिससे ईजिली आप रिलेशंस को समझा सकें. अब बोला है कि अगर फॉल्स है ओ प्रपोजिशन, आपको यहाँ पे ABCD लिख दिया है मैंने. ओ प्रपोजिशन यहाँ पे अगर आपको फॉल्स दी है तो आप क्या करेंगे? बाकी को कैसे इन्फर करेंगे? ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कंडीशंस याद होनी चाहिए कि अब हम एक एक करके देखते हैं. कि ओ से ई. पहले आपको ए प्रपोजिशन दी है तो ओ और ए के बीच में क्या रिलेशन है? कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है. तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्रू होती है तो दूसरी फॉल्स होती है. सो इफ ओ इज फॉल्स इट इज गिवन, तो ए क्या होगी? ए होगी ट्रू. ट्रू बाय कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप और कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन. सी इफ ओ इज फॉल्स देन ए इज ट्रू. तो आपको ऐसे ही लिखना है, ट्रू बाय कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन. इसके बाद सेकंड है दिस इज आई प्रपोजिशन. आई की तरफ हमारा सबऑल्टर्न रिलेशन है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है. सो सब कॉन्ट्ररी रिलेशन की क्या कंडीशन है कि बोथ प्रपोजिशन कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर. तो इफ ओ इज फॉल्स देन आई विल बी ट्रू. देन ट्रू बाय सब कॉन्ट्ररी रिलेशन. थर्ड वन इज ई प्रपोजिशन. So between O and E there is subaltern relationship. So if O is false then E is false by subaltern relationship. तो आपको अगर रिलेशनशिप की कंडीशंस याद हैं तो आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. तो ये 2 तरह की एक्सरसाइज आती हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. मैंने बहुत इजी वे में इसको समझाया है.